Aman, as I said, that you are a youth icon and people follow you. What has taken you to change your signatures to autograph? How he matured to adulthood? We all used to hear about Steve Jobs, Elon Musk's, Jeff Bezos of this world. But never in India were entrepreneurs being celebrated. India is one of the biggest entrepreneurial countries in the world. While growing up, there is no Indian entrepreneur I looked up to. That यार इसकी तरह बनना है, because they were all second, third generation entrepreneurs, right? Who were carrying their business legacies up. So कहते हैं कि रात को ड्रीम देखते हैं, मतलब एक सिंह नहीं है कि दिन में भी ड्रीम देखते हैं. मैं तो पूरा दिन ड्रीम देखता हूँ. वंडरफुल. आप लोगों ने एक मेटाफोर चेंज किया है. A for apple, B for boat. जैसा वो 3 Idiots में नहीं कहता, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे. जी. वो कहता है ना, वो कभी वायरस, तो वायरस कहता है तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे. तो वो भी सही है कि कई इंडस्ट्रीज में तेज भागना भी जरूरी है. और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये बहुत पुराना हो गया. आई थिंक आजकल भागने का जमाना है. सो आई थिंक भागना जरूरी है. बट ईच वन टू हिज ओन. If given an opportunity to pursue your studies, आप LPU ज्वाइन करेंगे? Welcome to LPU Talks, a space that ignites and inspires. Hi there. Today we have with us an epitomizer of youth and youthful heroism. He's a youth icon and he's the role model for many of the youth in the country. We have with us Mr. Aman Gupta, the co-founder of Boat. Welcome, Aman. Hey, thank you for calling me here, sir. Aman, as I said, that you are a youth icon and people follow you. What has taken you to change your signatures to autograph? You mean thereby that how childhood of Aman went, how he matured to adulthood, and now how he is enjoying the bliss of father. Some people say I still haven't matured. Even my wife says that I had 3 children, two small kids and me. But to be frank, sir, I just love that people in India now get inspired by entrepreneurs, which is a very good sign for India to come, right? We all used to hear about Steve Jobs. We all heard about Elon Musk's and Jeff Bezos of this world, right? But never in India were entrepreneurs being celebrated. India is one of the biggest entrepreneurial countries in the world. But अभी तक क्या था, हम लोग ज़्यादा मूवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स और इन सब में ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं. इनफैक्ट मेरे जैसे लोग भी so inspired by Hollywood. While growing up, there is no Indian entrepreneur I looked up to. That यार इसकी तरह बनना है, because they were all second, third generation entrepreneurs, right? Who were carrying their business legacies up. But it's so nice to see Indian students who are now wanting to be entrepreneurs. In fact, as an entrepreneurship wave in the country, even parents don't mind their children becoming entrepreneurs, starting up or joining a startup. And I think it's a beautiful phase we are all living in, and it's something which we all should be proud of. So the mindsets have changed completely. A lot. Yeah, absolutely. The mindset is totally pro entrepreneurship, pro startup. Wonderful. We are heading towards great and grand future. Yes, absolutely. Tell me how Boat got conceived. What was the idea which got translated into that bootstrap startup? So Boat was so basically India change हो रही था. Indians were changing. Consumers were changing. The technology was changing. But a lot of legacy brands in India were not able to change. They wanted to be do the things the way it used to happen in the West. The products were not made for India. They were not like in India. People like bass, especially Punjab music is now if you look at Punjabi music is now playing in India, the whole India, right? And it's got a very huge thump and bass. हमारे प्रोडक्ट्स में बेस बहुत ज़्यादा होता था. प्रोडक्ट वाइज मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग टू द कंज्यूमर फोकस होती थी. सो इंडिया वाज चेंजिंग, ब्रांड्स वर नॉट चेंजिंग. That's where we brought in some freshness, and God has been kind. I say consumers have been kinder, as I call them boatheads. And we're doing well. So you have instilled that freshness. Yeah, in a boring category. In a boring category. Yes. Tell me, you are with us now at LPU and you have visited LPU. Yeah.
what wows, what experiences, or what kind of vibes you are experiencing? I'll be frank. I've been to a lot of, myself. I've been to Delhi University. I studied from there. I did my CA, then I went to ISB for my MBA. In my personal life, in my journey, I've never seen an institute or a university like EDPU before. This is the first time I'm coming. It's so huge. You've got such an amazing swimming, 3 diving pool, swimming pools. You've got how many badminton courts, indoor courts. You've got Olympians here. I think you guys are, I think it's a story which should be marketed even more. People should know more about LPU. पहले तो मुझे लगा, the name lovely professional was like, मेरे को लगा यार lovely professional नहीं हो सकता यार, यहाँ आओ तो पता लगता है, what's in a name. Shakespeare कहता था ना, chuck the name, right? It's outstanding. Your facilities are amazing, and I've heard, like you were also telling me, the placements were amazing. We used to hear IIT में इतनी salaries मिलती हैं, यहाँ से मिल रही हैं. The campus is beautiful. There's startups, and I heard that one startup where you've set payload to the space, and so there's nothing wrong in this place, and just that 30,000-40,000 students, outstanding. I think I'm blown by I have learned a lot of things from sir today. I met with also that I think it's good to be a lifelong learner, and I am one of them, and I have learned so much today that LPU has to offer. It's outstanding what you guys have done here. It's a compliment, and well noted compliment, because if it comes from alumni of Kellogg's who has seen the world, and if the praise is there, we acknowledge that. नहीं बताओ, यूएस में इफ़ यू लुक एट इंडिया में ना, कैंपसेस इतने बड़े नहीं होते, ठीक है. यूएस वगैरह में फिर भी होते हैं. लाइक द नॉर्थ वेस्टर्न कैंपस इज एक्चुअली लाइक दिस, वेयर they've got lakes, they've got the business school there, Kellogg, and they've got the undergrad school. आई थिंक यहाँ पे वही वाइब देखी है मैंने. मतलब पहले होते थे ये बिट्स फिलानी करके होते थे, जो मतलब पुराने होते थे, उसमें भी इतनी फैसिलिटीज़ भी मॉडर्न नहीं होती थी जितनी यहाँ पे होने लगी हैं. I think it must be the largest university in India. I don't know. Is that true? Yeah, this is one of the largest. And these facilities can be made, I think अगर आप, मैं जैसे सर को बता रहा था कि आप अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ही ट्रेन करना शुरू करो और बचपन से ही उठा लो बच्चों को, जो इंडिया में जैसे चाइना वगैरह में होता है ना, वो ओलंपिक्स के लिए रेडी हो जाते हैं. ऐसा यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है, उसको यूज़ करके तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो बस. Meeting to the ideologies and the prolific innovativeness which you have. आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे पास इनोवेशन स्टूडियो है, जो आपने देखा हो. वहाँ से इतने स्टार्टअप्स, इतने माइंड टू मार्केट आइडियाज़ फ्लरिश करते हैं. आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत सही है. अभी देखो कि आई थिंक ऑल कॉलेजेस, ऑल यूनिवर्सिटीज़, जब मैं ISB गया ना, तो वहाँ पे ना घुस रहे थे लोग, कहते थे स्टार्टअप करेंगे. जब मैं निकला ना, वहाँ से 3 ही बच्चे थे जिन्होंने स्टार्टअप किया. बाकी सब सैलरी की तरफ चले गए, और दे स्टार्टेड माइट इनटू द कंसल्टिंग. इट्स अ कंसल्टिंग स्कूल. आई थिंक स्टार्टअप लैब्स, इनोवेशन लैब्स आर जस्ट स्टार्टिंग इन इंडिया, एंड अगर इंडिया को ग्रो करना है तो स्टार्टअप्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट. इंडिया इज, जैसे even our Prime Minister says, startup India, stand up India, right? So India is one of the youngest countries in the world, and it's our time now. और उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा हम ही लोगों को. We are now number 1 in population, right? 2 years back, the news was that. I think it's good time. 1/7 of the population is Indian. Right? So I think it's our time to rule. मैंने अभी आपका एक पोस्ट देखा था, उसमें आप एक प्राइवेट जेट के स्टेयरकेस पे खड़े हुए थे. हाँ. और एक पोज बनाया था. हाँ, शाहरुख खान की तरह. हाँ, वो पोज उनसे इन्फ्लुएंस था या आप अपनी ओपननेस शो कर रहे? नहीं, मैं तो इन्फ्लुएंस था. मैं तो शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, तो उसकी तरह पोज कर रहा था. वाओ, ग्रेट. बट वो पोज, मैं ना बचपन से ना, लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई हैड लाइक वो ड्रीम्स होते हैं. तो मेरे को जब मैं देखता था ना किसी को प्राइवेट जेट में, वो लगता है यार एक दिन मैं भी जाऊँगा, मेरा बहुत मन करता हूँ. जी. तो वो ड्रीम पूरी हुई, तो मैंने डाल दिया पोस्ट. अब आपने पोस्ट पे
बहुत इमोशनली लिखा है दैट बकेट लिस्ट में से एक विश लिस्ट टिक हो गई। करेक्ट। जी जी। तो वही पूरी सर, तो मेरे को बहुत मैं जब डाल रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तो कहती यार कई लोगों को लगेगा शो ऑफ कर रहा है, मैंने जिसको जो सोचना है सोचने दो। 99% ऑफ इंडिया गॉट इंस्पायर्ड ऑफ पीपल हु रेड दैट पोस्ट गॉट इंस्पायर्ड कि यार मेरे साथ ना एक थोड़ा वो कोई लगता है कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उनको ये फीलिंग आने लगी कि यार हम भी जा सकते हैं, बायोप्लेन जाना इज़ नॉट लाइक टफ। एंड लॉट ऑफ पीपल सेड कि यार दिस इज अमेजिंग एंड वी ऑल्सो हैव ड्रीम्स। सो आई यू नो the message I wanted to give was keep dreaming and keep hustling. And no dream is far away if you do that. So कहते हैं कि रात को ड्रीम देखते हैं, मतलब एक saying है कि दिन में भी ड्रीम देखते, मैं तो पूरा दिन ड्रीम देखता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। और पूरा दिन सो सकता हूँ। Yeah, only those dreamers can succeed. The dreams which do not let you sleep. Yeah. मुझे ये बताइए कि how well you consider that India and universities like LPU would participate, अपना पक्ष रखेंगे भारत के उदय के लिए, ये बताइए मुझे। मैं अभी तो यही बताया सर कि अगर हर कोई मेहनत करेगा तो इंडिया में जैसे पढ़ाई तो हम शुरू से ही अच्छी करते हैं, राइट। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अच्छे निकलते हैं, वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। अगर आप देखो माइक्रोसॉफ्ट के CEO, गूगल के CEO सब इंडियंस है, अडोबी के CEO सब इंडियंस हैं। तो हम इंडिया से टैलेंट तो अच्छा दे देते थे, पर आई थिंक इंडिया से स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहा है, अभी तक इतना नहीं है। और मैं मतलब विश करूँगा कि इंडिया से स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा तरक्की हो। ओलंपिक्स में हम लोग 2 मेडल 3 मेडल भी जीत के खुश होते हैं, अच्छी बात है, कहीं से स्टार्ट करना चाहिए। बट जैसे एक हमारा ड्रीम था कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, राइट। सो बहुत लोग पूरा करने हैं, like people like us at Boat also we are trying to see that India starts manufacturing well. So India will make in India is starting up, right. I think जैसे sports is also something which universities should encourage. जैसे US में क्या होता है, स्पोर्ट्स कोटाज होते हैं, राइट। अगर आप पढ़ाई से घुसो या स्पोर्ट्स से घुसो, स्पोर्ट्स को भी उतना ही वेटेज मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता, राइट। इंडिया में हम लोगों ने जब पढ़ाई करी तो एक होता था फिजिकल एजुकेशन, PE बोलते थे, वो 6 सब्जेक्ट लेते थे जी, कि चल किसी में अच्छा नहीं हुआ तो एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन से निकल जाएगा। तो वो और पढ़ाई कर, मतलब लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते थे, खेल पे नहीं। तो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ लाइक योर्स विद सच गुड फैसिलिटीज़ एंड देयर इज होलिस्टिक लर्निंग, देयर इज स्पोर्ट्स, the ideology, there are opportunities you guys give to startups, innovations. I think it's huge. आप लोगों ने एक मेटाफोर चेंज किया है, A for apple, B for boat, हाँ, मुझे अच्छा लगता है। और C for CA, C for C, अभी नया which you are, A for apple, B for boat and C for C. क्या यूथ के लिए मैसेज है that you need to change it from the scratch and take it to the pinnacle? मतलब किस तरह से ऊंचाइयां धीरे धीरे स्लोली एंड स्टीडीली आगे जाना चाहिए? जरूरी नहीं है सर, मेरा आई डोंट बिलीव इन स्लोली एंड स्टडीली। आई थिंक दोनों तरफ है। एक तरफ आई वुड से कि जैसे वो 3 Idiots में नहीं कहता, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, वो कहता है ना वो वीरू वायरस, तो वायरस कहता है तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो वो भी सही है कि कई इंडस्ट्रीज में तेज भागना भी जरूरी है। और स्लो एंड स्टडी विल द रेस ये बहुत पुराना हो गया। आई थिंक आजकल भागने का ज़माना है, सो आई थिंक भागना जरूरी है। बट ईच वन टू हिज ओन। सम पीपल some things some people don't like to hustle hard, some people like to hustle. It's sometimes a positive word, sometimes a negative word. I don't want to preach, I don't like to preach. I believe that each one to his own, and if somebody wants to do things in a fast pace, it's his life. I love fast paced life. I love to hustle, I love to win. I that's me. So I feel if in India today, if I go to a college or I go to a cafe, और वहाँ बैठे होते हैं, हर टेबल पे कोई ना कोई बैठ के कोई बिजनेस प्लान बना रहा होता है या बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है। तो अगर आप नहीं सोच रहे और आप नहीं कर रहे तो दूसरा बंदा तो कर ही रहा है, तो और वो आगे निकल जाएगा, वो आगे, क्योंकि उसकी दौड़ आपसे तेज है, उसकी सोच आपकी ज़्यादा है, उसकी दौड़ आपसे तेज है, उसके वो करना चाहता है, यू नो। तो मतलब मैं एक लाइन कहता हूँ, बेटर ट्राई देन क्राई। ये ना हो कि आप
रो बाद में कि मैंने क्यों नहीं किया क्योंकि दूसरे बंदे ने ये कर लिया, क्योंकि मैंने भी सोचा था, राइट? आप बोल रहे हो कि मैंने सोचा था कि मेरे को ये करना चाहिए बट दूसरा बंदा आपसे पहले कर लेगा, तो आप बाद में रोगे, आप पछताओगे कि यार मुझे भी ये आइडिया आया था, मैंने क्यों नहीं किया. सो बेटर ट्राई एंड क्राई, यू नो, आई हैव नो रिग्रेट्स. वेरी ट्रू. हमें ये बताइए कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिन्होंने कम्प्लीटली आपकी लाइफ चेंज की होगी. मे बी फैमिलियल इवेंट्स, दे मे बी फ्रेंड ओरिएंटेड इवेंट्स. कुछ उन इवेंट्स के बारे में बताइए. सर लाइफ तो रोज़ ही चेंज हो रही है. इवेंट्स जैसे मतलब अभी आई एम गोइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू टेल देम अबाउट माय लाइफ स्टोरी. Life is changing as we speak, sir. Every day is a new day. I always say every day is a Sunday and every day is a Monday. Live life, enjoy. इन वो पिक्चर है कल होना हो, उसमें शाहरुख खान कहता है जियो हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल होना हो. सो फॉर मी एवरी डे इज़ अ फ्रेश डे वेयर आई लर्न. सो देयर सो मेनी इवेंट्स सर, छोटे छोटे हुए हैं. जैसे क्या बताऊँ, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था और सडनली मेरे को मतलब CA कर रहा था और CA में मेरे को मन नहीं करा, तो मैंने चेंज किया, कुछ और करा. फिर मार्केट चेंज हो रही थी, कंज्यूमर चेंज हो रहे थे, तो बहुत चीज़ें हैं सर. ऐसा कोई इवेंट याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक लाइफ चेंजेस एवरी डे. मुझे ये बताइए, LPU के साथ टाई अप अगर हैं, करना चाहें हम, तो तीनों फैसेट्स पे कर सकते हैं. रिसर्च ओरिएंटेड, बिकॉज वी हैव वेरी गुड रिसर्च फैसिलिटीज़. We can do a lot of case studies together, and we can even plan some minors, जो minors या a course sound engineering में कर सकते हैं. उस बारे में आपका क्या कहना है? करना चाहिए सर. आज फर्स्ट डे है. आई थिंक हम लोग भी एज अ कंपनी वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग एंड वी नेवर बीन टू एनी कैंपस टू हायर. तो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं. वी गेटिंग good HR professionals who will start leading. We've grown very fast that we've not got some of these things imbibed. Is all ना campus hiring शुरू करो और थोड़ा research job campuses करो. हमारी research R&D team तो है, but I think we need to do tie-ups with institutes, with organizations like yours and with universities like yours where research is happening and we can also empower and go along with them on और हमारे बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी माइंड म्यूजिक के लिए. एब्सोल्युटली सर. कुछ बस मेरे को तो जितना मज़ा स्टूडेंट्स से आता है उतना कहीं नहीं आता. आई थिंक these guys think very differently from us and they bring in the freshness in a very stereotypical world. They bring in the breaking the monotony. The fresh learnings, and I think students are energetic and passionate. It's always amazing to. And they do not have that glitches of being experienced or specialized into a particular. हाँ, बहुत सही होता है सर. आजकल के बच्चे इतना डायनामिज्म उनमें होता है, किसमें नहीं होता. So I love talking to them. I love inspiring them and getting inspired from them. Wonderful. तो आपकी जो कैंपस हायरिंग स्प्री है वो LPU से ही शुरू करेंगे. ठीक है सर. ठीक. प्लग इन कर दिया आपने अच्छा से सर. ठीक है सर. ठीक है. थैंक यू. ठीक है सर. मुझे ये बताइए कि हमारे कुछ बच्चे, कुछ नहीं बहुत बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे हैं एग्रीटेक से लेकर हेल्थ केयर और एडटेक में. हाउ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू देयर एलिवेटर पिचेस? Yeah, it's good, sir. At Shark Tank also I listened to so many elevator pitches, and and I was also surprised that so many pitches, so many different ideas are traveling around India. I never expected कि इतना entrepreneurship mind होगा इंडिया में. इतने brains, अलग अलग लेवल से इतने brains, इतने businesses बना सकते हैं. I was surprised by the number of pitches. कहाँ से कोई दरभंगा से 2 लेडीज है कि वो अचार बना रही हैं. यहाँ से कोई गुजरात में कोई अंडरवेयर कंपनी अच्छी चल रही है. कोई साउथ इंडिया से रॉकेट्स बना रहे हैं. मतलब मैं खुद घबरा गया था. मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी स्टार्टअप्स इंडिया में बन रहे होंगे. और जो मैंने आपको स्टार्टअप बताया दिगांतरा, वो देखे स्पेस तक ले. कमाल है जी. यहाँ पे पंजाब से कोई, मतलब पंजाब तो वैसे ही इतना अच्छा एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप हब है इंडिया का, बट आउटस्टैंडिंग सर. आई थिंक आई वुड लव टू सी, मीट एंड एक्सप्लोर. या
plug into nirvana, define nirvana, because that's the credo. आपकी punchline है plug into nirvana. मैं कैसे बताऊँ सर निर्वाणा का मतलब? सर वो क्या होता है ना, आप जब किसी बोट में जाते हो तो आप अपना ना लैंड पीछे छोड़ देते हो, करेक्ट? क्रूज में जा रहे हो, देखो तो आप लैंड पीछे छोड़ देते हो, अपनी वरीज पीछे छोड़ देते हो, और आप एक लैंड ऑफ हैप्पीनेस, पीस, you are yourself, you are Composed, calm. you are calm, you are with yourself, Yeah. leaving everything behind. So when you wear our products, like they were like headphones mostly, with your headphones you plug into your own zone, you plug into your zone of happiness, plug into your own calm world, plug into nirvana. वो नहीं होता था, दर्जी नहीं कहते थे nirvana, salvation, By yourself. Be yourself, Completely by yourself, yes. engrossed by yourself. तो plug into nirvana. LPU में क्या यूनिक चीज़ लगी आपको? नाम बहुत यूनिक है आपका सर, लवली, बट अदर देन दैट आई थिंक द कैंपस इज यूनिक, आई थिंक द फाउंडर्स आर अमेजिंग. आई मेट मित्तल सर, बहुत यूनिक है. आई वाज टॉकिंग में क्या क्या नया सोच रहे हैं और क्या पढ़ी उन्होंने खुद मेरे को टूर दिया अपना कैंपस का, कि इतना ह्यूज कैंपस बनाया है, बच्चे इतने इंस्पायरिंग हैं और इतने अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं जी. तो हर चीज़ यूनिक है सर. जी जी. देखते हैं, अभी मैं तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी नहीं है. आप ऐसे कोई नवे तो है नहीं आई थिंक. हाउ योर फैमिली, आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है सर. मतलब अगर क्या बोलते हैं ना, मैं तो 36 साल तक जब मैंने ये स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 36 एंड आई स्टार्टेड अर्निंग ओनली व्हेन आई वाज 40. Before that I had no money, so I used to survive out of my wife's salary, and my parents supported us. I used to stay with them only for till now they stay with us in our house, but I used to stay with them and used to stay together in our class. So they're all the time with you, and Yeah. they're all in the thick and thins. हाँ सर, फैमिली तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि होता है ना, हम एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना थोड़े से पागल से होते हैं, थोड़ा इराटिक होते हैं, और मैं बहुत इराटिक हूँ, और मेरे जैसे बंदों को संभालना भी बहुत टफ है, मेरे साथ रहना भी बहुत टफ है. आज कुछ होता है तो कल खुद सोचता हूँ, फिर सोच देता हूँ, फिर कुछ होता है, रह के भी ना रहना, वहाँ पे एक हमारी ना एक ट्रेट होती है कि हम घर पे हैं लेकिन घर पे नहीं है, मेंटली हम अभी भी काम पे हैं. तो ऐसे लोगों के साथ रहना और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है. So I think family support is very critical for anybody who's going through these ups and downs. अब आगे क्या और आगे कैसे? आगे कल 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 क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा. नहीं आपकी हर स्टेटमेंट और इडियम्स जो है ना फिल्म से एक्सट्रैक्ट है सर. तो ये बताइए कि कौन सा फिल्म स्टार सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? मेरे को सर, मेरे को एक ना वो टॉम क्रूज बहुत पसंद था, और मैं उस समय विंबलडन गया, वहाँ पे उनसे मिला. अच्छा. सर अभी शाहरुख खान बहुत पसंद है, उनसे मिलना है. और ज़्यादा एक्ट्रेस का नाम लूँगा तो मेरी वाइफ मारेगी. तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है. आप का रिटायरमेंट प्लान क्या है? सर पैदा तो होने दो, अभी रिटायर. That's wonderful. That's wonderful. अभी बहुत अर्ली है सर जिसके बारे में बात करना. यही आपकी स्पिरिट जो है ना, वो आपको अमन गुप्ता पता बनाती है. यही स्पिरिट. थैंक यू सर. यही स्पिरिट. एंड वी द ओल्डर्स feel that India is in very safe hands. अरे सर, we are all young at heart, sir. Yeah. And that randomness which you were talking about, you gave it a name erratic, but वो randomness ही है ना जो वही आदमी को succeed कराती है. अरे वही randomness. D2C कंपनी को इनिशिएट करने में, बिकॉज बोट इज़ अ D2C कंपनी, उसको इनिशिएट करने में, उसको आगे चलाने में कैसे, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं आपने, या क्या फोर्स ही कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज? सर D2C क्या है ना, इंडिया में ना हम लोग फिरंगी ब्रांड से बहुत होते हैं, क्या बोलते हैं ना, कॉलोनियल फैशन था हमारे को. करेक्ट. आजकल की जनरेशन है ना, वो बहुत they don't mind Indian brands. In fact, they love Indian brands. They have that sense of pride. They have that sense of, earlier a lot of people used to think about going to brain drain hota tha. Ab there is reverse brain drain where people are coming back. So people don't mind, people love, in fact given a choice they would prefer Indian brand over Firangi brands.
So that is what D2C is, sir. Direct to consumer brands are becoming popular, and every day there are like a few hundred brands in India which are start. So it's a time for Indians to rule, and it's a time for Indian brands should go outside India and explore the world market, because we're very restricted to India for some reason in our thinking. I think that is also changing now. जैसे हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एज एडजंक्ट फैकल्टी या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अब यूजीसी ने शुरू किया है. हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनो. मैं नहीं मिल रहा सर फैक्ट. अभी प्रोफेसर बनने के लिए बहुत बहुत जल्दी है. अभी मेरा अंदर मन नहीं करता प्रोफेसर बनने का. बच्चों से मैनेजर से ना बात करना अच्छा लगता है. वही लेकिन प्रोफेसर फॉर्मल वाली फीलिंग ना अभी आ नहीं रही अंदर से. अच्छे भाई तब बन. या I personally thank you so much, so very much for You were being kind to the- me, sir. Thank you for those questions. And as a closing remark, if given an opportunity to pursue your studies, आप LPU ज्वाइन करेंगे? अभी सर पढ़ाई ना कर ली बहुत. अब मैं ना बोर हो जाता हूँ पढ़ाई करके ना. मेरे से बुक्स पढ़ी नहीं जाती यार. मैंने आज तक कोई किताब जैसे आपने यहाँ रखी नहीं है तीनों या यहाँ भी ये 3-4 मैंने ना किताबें पढ़नी को पढ़ते पढ़ते ना नींद आ जाती है. नहीं, हम बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस रखते हैं. हमारा क्रीडो है थिंक आउट ऑफ द बुक. It is not think out of the box, think out But of the I'm book. always learning from people, sir. So I'm always learning from people. So as I said, I'm a lifelong learner. So अभी मैं यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई नहीं कर रहा सर. फिर आप अटेंडेंस मांगोगे वो सब फील जाता सर. ऐसे डिग्री देनी है तो ले लूँगा, बट वैसे मैं पढ़ाई I, on behalf of Lovely Professional University, thank you so very much, and we wish that you grow fonder and fonder, and bring lot of gleam and glory to India. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.